Hello, my dear student. Myself Ritesh Singh, and in this video, I'm going to teach you about law of demand. About law of demand. As you all know that in our class we have already studied this chapter, demand chapter number 3rd of 11th Commerce textbook. But lots of students have confused about law of demand. What is law of demand? So I'm making this video for you to get an idea about the law of demand, to get brief idea about the law of demand. So what is law of demand? In normal sense, we can say that when there is a increase in price, there is a decrease in demand. And when there is a decrease in price, there is an increase in demand. Means vice versa. Opposite relationship between demand and price. But according to law of demand, one perfect definition is there. And not only definition, I will explain you by schedule diagram of demand also. Okay? So let's start with the diagram and with the definition about law of demand. First of all, we will study about the definition of law of demand. It is given by Alfred Marshall. He is the one of the great economist. Okay? Alfred Marshall. So what he says, when other factor affecting demand remain unchanged, demand remain unchanged, when other factor affecting demand remain unchanged, if the price of a commodity or service falls, its demand expand. Expand means increase, बढ़ना. When other factor affecting demand remain unchanged means, sir, what? Other factor means what? As you all know that, as you all studied in the chapter, other factor like taste of consumer, like income of consumer. Okay? This is the other factor. So other factor affecting demand remain unchanged. But if the price of commodity or a service fall, its demand expand. And vice versa. If the price of commodity or service increase, demand contracts. अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी या सर्विस की फॉल होगी यानी कम होगी, तो डिमांड एक्सपांड होगा यानी कि बढ़ेगा. और अगर किसी भी कमोडिटी की या सर्विस की प्राइस इंक्रीज होगी, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स होगा. कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कम होना. ठीक है? तो एज पर द डेफिनेशन, you see that there is a inverse or opposite relationship between the demand and price. डेफिनेशन अगर आप ध्यान से समझो तो प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है. कैसे, वो आपको शेड्यूल डायग्राम में मैं और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा. So let's start. If you see that here price is there and here demand of wheat. Okay? यहां पे आपको प्राइस दिया हुआ है शेड्यूल में, डिमांड शेड्यूल में, और यहां पे आपको डिमांड ऑफ व्हीट दिया हुआ है. तो अगर आप प्राइस को देखो, इफ यू सी द प्राइस, इट स्टार्ट फ्रॉम ₹60. ओके? उसके बाद प्राइस डाउन होके ₹50 हो गई. देन थोड़ा प्राइस और डाउन हुआ, ₹40 हो गई. प्राइस थोड़ा और डाउन हुआ, ₹30 हो गई. थोड़ा और डाउन हुआ, ₹20 हो गई. तो आप देखो तो यहां प्राइस 60, 50, 40, 30, 20 यानी प्राइस डिक्रीज हो रहा है.
बट अगर उसके सामने आप डिमांड देखो तो जब प्राइस 60 रुपीज थी तो डिमांड 100 केजी ऑफ व्हीट था। जब प्राइस कम होके 50 रुपीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो गया, 200 तक पहुंच गया। देखो आप, 100 से 200 पहुंच गया। अगेन प्राइस इधर कम हुई, 40 रुपीज पे आ गई, डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, 300 पे चला गया। अगेन इफ यू सी दैट प्राइस हैज गोस डाउन, प्राइस फिर से एक बार नीचे गया, 30 रुपीज पे आ गया, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गया, 300 से 400 केजी हो गया। अगेन इफ यू सी द प्राइस 20 रुपीज पे आया, फॉल हुआ प्राइस, लेकिन डिमांड क्या हुआ, अगेन 100 केजी बढ़ के 500 पे पहुंच गया। सो अगर आप इस चीज को कंपेयर करो तो देखो यहां प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम होते जा रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप इस चीज को समझो तो इसमें क्या पता चलता है, when there is a decrease in the price there is increase in the demand of wheat per kg। डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्राइस कम होते जा रही है, यानी देयर इज अ इनवर्स और अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ व्हीट। सो इसी चीज को मैं आपको और डिटेल में डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहता हूं। ध्यान से डायग्राम देखो, आप बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपको देखो वर्टिकली वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ है वर्टिकली, और हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस ड्रॉ है। देखो आपको साइड में एक्स एक्सिस दिख रहा होगा यहां साइड में, और यहां वाई एक्सिस है, ठीक है। If you see that on y-axis we have mentioned price, हमने प्राइस मेंशन किया हुआ है y-axis पे, and on x-axis डिमांड इज देयर पर केजी, केजी के हिसाब से ही होगा डिमांड। तो x-axis पे क्या मेंशन है, डिमांड, y-axis पे क्या मेंशन है, प्राइस। वैसे ही सेम जो प्राइस है वो यहां पे लिख दो, तो 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज, ये जो यहां की प्राइस है वो मैंने यहां लिख दी, ठीक है। अब जो डिमांड है वो मैंने यहां लिख दी, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 400 रुपीज, सॉरी 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी एंड 500 केजी, केजी में होता है, सॉरी। तो 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी एंड 500 केजी। तो यहां आपने रुपीस यानी कि प्राइस मेंशन कर दिया, यहां आपने डिमांड यानी कि केजी में आपने डिमांड मेंशन कर दिया। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, आप देखो यहां पे देखो 60 रुपीज है तो 100 केजी व्हीट की डिमांड है, यानी 60 रुपीज पे, ये रहा 60 रुपीज पे कितना, 100 केजी। ये देखो मैं 100 पे लेकर आया, हुआ यहां पे, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया प्लॉट करके ए। क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ए, ठीक है। देन 50 रुपीज पे आते हैं, तो 50 रुपीज को अगर आप ड्रॉ करोगे तो 200 केजी पे है, तो यानी 200 पे लेके आके आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सेम जब 40 रुपीज है तो 300 केजी पे मैंने ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखो आप, 30 रुपीज है तो मैंने क्या किया, 400 केजी पे ज्वाइन कर दिया। 20 रुपीज है तो मैंने क्या किया, 500 केजी पे ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप देखो तो प्लॉटिंग पॉइंट देखो, जब 60 रुपीज था मैंने वहां पे ए नाम दिया, 50 और 200 मैच हो रहा है मैंने वहां पे बी नाम दिया, 40 और 300 मैच हो रहा है मैंने यहां पे सी नाम दिया, ठीक है। 30 और 400 यहां पे टच कर रहा है तो मैंने इसको क्या नाम दिया, डी नाम दिया, और 20 रुपीज 500 केजी पे आ रहा है तो मैंने इसको ई नाम दिया, ठीक है। इस
कर्व को, इस शेड्यूल को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इसको हम पूरे कर्व को डी नाम दे देंगे। क्या? डी। डी फॉर डिमांड। अब अगर आप देखो तो ये स्लोप क्या बताता है, ये लाइन क्या बता रही है? नेगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है ये? नेगेटिव स्लोप है। सर कैसे नेगेटिव स्लोप है? तो आप देखो, जब 60 रुपीज था वहां हमने ए नाम दिया, 100 kg डिमांड था ना, फिर कम हो गया, बी नाम दिया, और कम हो गया, सी नाम दिया, और कम हो गया, डी नाम दिया, फिर प्राइस कम हो गया, ई नाम दिया। लेकिन अगर आप देखो तो यहां पे डिमांड बढ़ते जा रहा है नीचे अगर देखो तो, लेकिन प्राइस कम होती जा रही है। यानी अगर आप ए बी सी डी ई इस चीज को अगर आप ध्यान दो तो ए सबसे ऊपर है, बी नीचे गिर गया, सी और नीचे गिर गया, डी और नीचे गिर गया, ई और नीचे गिर गया। अगर आगे होता तो ऐसे ही होते जाता कंटिन्यू। तो इस कर्व को आप या इस शेड्यूल को आप नेगेटिव शेड्यूल या नेगेटिव कर्व बोलोगे, या नेगेटिव स्लोप भी बोल सकते हो। सो डिमांड कर्व का जो लाइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और हमेशा डिमांड और प्राइस में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में ये चीज समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।